participants. So be ready every time. Take the opportunity. So tomorrow somebody else will give me or summarize today's session. And now, as we discussed, we will start with vein pump. Now, vein pump is again similar to gear pump, but gears are replaced by veins. So, if the slide is visible to you, you can see the construction of vein pump. Just ensure that the slide is visible to you. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. So now see, uh, it is by construction similar to internal gear pump. There is a cam ring inside which there is another rotor, and those are placed eccentrically. But now there is no internal or external gear kind of construction here. Rather, the inner part, the inner rotor is having slots like this along the radial direction, all along the thickness of this rotor. And the rectangular thick veins are placed inside these slots. You can apply small pressure from the bottom side. The pressure can be exerted either by the pressurized oil or by a light spring. This rotor, which is having veins inside it, is rotating inside a cam ring. So whenever it will rotate with certain velocity, due to centrifugal force, the veins will come out of the slots. To what length can they come out? Very easy from this figure. Whatever clearance is available between this rotating part and the cam ring. So that will, up to that length, the vein will come out. The vein will come out due to centrifugal force, and of course, we have ensured small force acting from bottom side, which will always force the vein to come out of the slots. So whenever it will start rotating, as you see, you can see here, there is no clearance between the rotor and cam ring. So as the rotor starts rotating and as it is eccentrically fitted, small gap takes place as it starts rotating. In this case, it is rotating in clockwise direction. So as you can see in this figure, the annual area between these two parts is increasing, and hence the vein will come out. The cap is increasing till this point, till first half of the rotation. Here you can see the maximum length of the vein which has come out of the rotor. But of course, still there is some part inside the slot. Then after this first half, when it progresses forward, the gap is reducing. So again, vein will be forced inside the slot because the gap is reducing. And till it comes to this point again, the vein will go inside the slot, and at this point it will completely go inside this slot. So this is the construction. Now how it helps to compress the oil? Again the same formula. Initially the volume is increased. So this particular passage is connected to the inlet valve. So as oil gets this much volume, the suction stroke takes place. So till first half of the rotation, oil comes
into the envelopes formed by this casing, camring, and the vanes and the rotor. So whatever is gap in between these three components, that is camring, this rotor, and the vanes. So oil is trapped in between these envelopes, and it is moved forward, physically moved forward by these vanes in clockwise direction. So as we have seen that after this particular point, as can be seen in the diagram, the volume decreases. So you are trying to compress the oil. So suddenly it will oppose and it will react in the form of rise in pressure. And the volume by which the gap is reducing, that much oil will be pushed out of the pump into the delivery pipe. And so delivery stroke starts from here till here, and you get continuous discharge of the oil. तो जैसा हमने गियर पंप में देखा था, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ चेंज कंस्ट्रक्शन में है। इसके अंदर एक घूमता हुआ रोटर जिसमें हमने वेन्स लगाए हुए हैं। अब वेन्स की वजह से क्या होता है, ऐसे जो ये पूरा एरिया ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग पैकेट्स में, जिनका वॉल्यूम इनिशियली बढ़ता है तब सक्शन स्ट्रोक होता है, और बाद में जब घटते जाता है तब डिलीवरी स्ट्रोक होता है। अच्छा, वेन्स यूज करने का रीजन ये है कि जैसा हमने गियर पंप में देखा था कि गियर का जो टीथ है और केसिंग है उसमें थोड़ा क्लियरेंस रखा था ताकि ज़्यादा वियर एंड टियर ना हो सके। ऑफकोर्स उसमें ऑयल है, वो लुब्रिकेशन का काम भी कर रहा है, लेकिन वो अगर बहुत टाइटली रहा क्लियरेंस उसमें तो वियर रेट बढ़ जाएगा, और अगर वो टीथ घिसता है, खराब हो जाता है, तो उसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें हमने वेन्स डालकर क्या किया है, इसका मटेरियल हम अब बदल सकते हैं। ऐसा मटेरियल, पॉलीमेरिक मटेरियल यूज कर सकते हैं जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम है। ऑफ कोर्स उसका भी वियर एंड टियर ड्यूरिंग द यूज होते रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो ज़्यादा जब घिस जाएगा तो सिर्फ उस पर्टिकुलर वेन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ना कि ये रोटर पूरा बदलने की ज़रूरत है। और वो लाइट वेट है, उसका मटेरियल भी अलग है, तो ये रेट भी कम होगा, और जब भी रिप्लेस करने की बारी आएगी तब खर्चा भी कम आएगा, और मेंटेनेंस के लिए एकदम ईजी है। इस वेन को एक कैम रिंग के साथ टाइट कांटेक्ट में रखने के लिए नीचे से प्रेशर डाला है। टाइट कांटेक्ट क्यों रखना है? क्योंकि अगले वाले पैकेट में से जो प्रेशराइज्ड ऑयल लीक होके पीछे आता है फिर से, वो ना हो इसलिए। तो उससे फायदा क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गियर पंप में जो प्रॉब्लम आती थी वो इस पर्टिकुलर डिजाइन के साथ हमने वो इम्प्रूव की है सिचुएशन, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ सके ऐसी रचना यहाँ पर की है। तो दिस वेन विल रिमेन इन टाइट कॉन्टैक्ट विद द कैमरिंग while it is rotating. ऑफ कोर्स जो एडवांटेज क्लियरेंस होने की वजह से गियर पंप में मिलता था, कौन सा एडवांटेज है, किसी को याद है? क्लियरेंस होने की वजह से गियर पंप के एप्लीकेशन में एक एडवांटेजियस पॉइंट था। क्या था वो? सर फ्रिक्शन एक लिमिट तक फ्रिक्शन रखते थे, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता था। नहीं, सीलिंग प्रोवाइड करता है। हाँ ऑयल तो करता है, लेकिन वो क्लियरेंस ज्यादा होने के कारण डिसएडवांटेज तो देखे हमने, लेकिन एक एडवांटेज भी मिलता था गियर पंप में, जो हमने लास्ट टाइम स्क्रीन पे देखा भी। किसी को याद है, किसी ने नोट किया होगा? क्वाइट लॉजिकल। क्लियरेंस मतलब उन दोनों के बीच गैप कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखा हमने। तो उसकी वजह से एडवांटेज ये था कि ऑयल में अगर कोई
सॉलिड पार्टिकल है, कॉन्टेमिनेशन है स्मॉल साइज का, ऐसा अगर बहुत स्ट्रिक्टली फिल्टर किया हुआ ऑयल अगर नहीं है तो भी चल सकता था गियर पंप में। वो फंसता नहीं है बीच में क्योंकि थोड़ी गैप है। तो उस गैप की वजह से कॉन्टेमिनेशन का कुछ लेवल तक कॉन्टेमिनेशन को वो टॉलरेट करता था, तो उसका टॉलरेंस अच्छा था। ये एक साइड इफेक्ट बोलेंगे लेकिन एडवांटेज था। यहाँ पे भी अब हमने बिल्कुल टाइट कॉन्टैक्ट रखा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई है, लीकेज कम हो गया है, तो इसका आउटपुट वॉल्यूम के हिसाब से अच्छा मिलेगा, डिस्चार्ज अच्छा मिलेगा, जैसा हम थियोरेटिकली चाहते हैं उसके बहुत ज़्यादा पास ये रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन ऑयल में अगर कुछ बारीक सॉलिड पार्टिकल कॉन्टेमिनेशन के तौर पे है तो वो यहाँ पे दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसमें टाइट क्लियरेंस है, गैप नहीं है। तो वो एक बात ख्याल में रखो। यहाँ पे एक एनिमेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा तो नीचे जाके देखते हैं। तो क्या आपको वेन पंप का वीडियो दिखाई दे रहा है? दिख रहा है लेकिन रन नहीं हुआ। हाँ हो गए, हो गए। तो यहाँ पे दो ही वेन दिखाई है सिंप्लिसिटी के लिए, ऐसी बहुत सारी वेन रहेगी। तो इस तरह से ये वेन यहाँ का ऑयल को स्वैप करेगी, तब यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होगा, अगला वाला ऑयल यहाँ पे उसी जगह में आएगा, तो इसको वो ढकेलते ढकेलते यहाँ ले जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस ओवरकम करके प्रेशराइज्ड ऑयल बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस वेन पंप विल वर्क। ये देखिए और एक वीडियो है, इसमें आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। सामने से देखो, अंदर वाला रोटर वाला पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर वेन्स हमने फंसाए हुए हैं। ये कैमरिंग है, जैसे ये घूम रहा तो बीच में जो गैप है वो बढ़ती जा रही है, बाद में कम होती जा रही है। तो जहाँ से वो बढ़ना चालू होगी वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होगा, इनलेट को कनेक्शन कर देंगे, बाद में डिलीवरी स्ट्रोक होगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है राइट साइड में हो सकता है सक्शन स्ट्रोक हो, और लेफ्ट साइड में डिलीवरी, अगर वो इसी डायरेक्शन में घूमता है तो। आ रही बात समझ में? So I hope Yes. this video would have helped you to understand the concept of vein pump very easily. Let us go back to our presentation. वही यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, इसलिए इस प्रेजेंटेशन में जो दूसरा वाला वीडियो है वही है। ये फिगर को आप अच्छी तरह से देखो। दिस इज द फिगर दैट यू शुड ड्रॉ इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड like explain with neat sketch working of vein pump। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि ये बीच में जो मैक्सिमम गैप दिखती है ना, उससे थोड़ी ही ज्यादा वेन की लंबाई हो सकती है, और जो वेन की लंबाई हो सकती है वो पूरा वेन इसके अंदर आना चाहिए। जब ये पूरा कंप्लीटली मेश अंदर जाता है, इसका क्लियरेंस जब सबसे कम होता है, तब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वेन इज इनसाइड द स्लॉट, एंड जब गैप ज़्यादा है तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वेन इज आउट ऑफ द स्लॉट। लेकिन
कुछ पार्ट इसके अंदर रहेगा, नहीं तो ये फिसल जाएगा इस गैप में। तो इस तरह से ये फिगर निकालते वक्त ये अंदर वाला रोटर और ये जो कैमरिंग है उसके बीच वाली गैप दिखाना। कुछ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं, इस गैप को जैसा बड़ा दिखा देते हैं। तो इतनी बड़ी गैप अगर हम दिखाएंगे तो वेन उस स्लॉट में से बाहर आके बीच वाले गैप में गिर जाएगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम ये आउटलेट का प्रेशर का एक अंदरूनी कनेक्शन करके इस प्रेशराइज ऑयल को हम यहाँ यूज कर सकते हैं नीचे से उस वेन पर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पे टाइट कांटेक्ट बना सके, जिसकी वजह से हमें हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिलती है। अदरवाइज कुछ अन्य डिजाइन में लाइट स्प्रिंग भी यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो इस तरह से ये वर्क होगा। अब ये जो पहले वाला फिगर आप फिर से अगर देखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में सक्शन स्ट्रोक हो रहा है यहाँ तक, और राइट साइड में डिलीवरी स्ट्रोक हो रहा है। प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहेगा? आउटलेट साइड। सर राइट साइड। राइट साइड में। अगर हम समझते भी ये एरिया भी कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स बन जाएगा। उस फोर्स को जब हम कंसिडरेशन में लेंगे तब पता चलेगा कि लेफ्ट वाली जो पार्ट है इस पूरे असेंबली की, तो यहाँ पे कम प्रेशर है, लेकिन राइट साइड में कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेशर है। तो वो कॉम्प्रेस होते होते प्रेशर बढ़ाते हुए बाहर निकल रहा है। तो इस पूरे ये स्ट्रक्चर तो पूरा एक ही है, लेकिन इसके आधे पार्ट में कम प्रेशर है और आधे पार्ट में फोर्स है, ज़्यादा फोर्स है। तो ये फोर्सेस का बैलेंसिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जिस भी फाउंडेशन पे हम लगाएंगे या यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट है वो बेरिंग पे लगाया हुआ होगा, तो इस पे साइड थ्रस्ट आते हैं, जिसकी वजह से बेरिंग पे और अल्टीमेटली फाउंडेशन पे दोनों पे भी अनबैलेंस फोर्सेस एक्सर्ट होंगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो सकते हैं, वो फाउंडेशन से जल्दी उखड़ सकता है, बाकी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप तो सब लोग ये जानते हैं। तो ये नलीफाई करने के लिए, इसलिए इस पर्टिकुलर डिजाइन को ऐसा भी कहा जा सकता है कि दिस इज अनबैलेंस्ड वेन पंप। सिर्फ वेन पंप कहा गया है, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ही अनबैलेंस वेन पंप होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसके फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग अगर करना चाहते हैं तो एक अलग डिजाइन इसमें इम्प्रोवाइज करके हम बना सकते हैं। ये जो आउटर कैमरिंग थी जो सर्कुलर शेप में थी, उसको अभी हमने इलिप्टिकल बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लेफ्ट वाली साइड थी उसमें सक्शन और डिलीवरी, उसमें गैप देखो बढ़ते गया फिर कम होते गया, राइट साइड में ही बढ़ते गया है और कम होते गया है। तो इलिप्स में अगर हम सर्कल रखेंगे तो दो साइड में वेरिएबल एरिया मिलता है हमें। तो जब वो बढ़ते जाता है तब सक्शन वाला एरिया जो इनलेट जोड़ देंगे, घटते जाता है तब डिलीवरी वाला जोड़ देंगे। ऑफकोर्स रोटेशन देखनी पड़ेगी उस हिसाब से, जहाँ इस पर्टिकुलर केस में ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे घूम रहा है वो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इधर जाएगा तो ये वॉल्यूम जो है एनुलर स्पेस बढ़ रहा है, तो ये इनलेट पोर्ट है। तो यहाँ से ऑयल यहाँ से अंदर खींचा जाएगा यहाँ तक, बाद में यहाँ से स्पेस कम होती जा रही है तो वो कंप्रेस होगा, तो इसको हम बाहर ढकेलेंगे। तो यहाँ पे हमने आउटलेट पोर्ट जोड़ दिया है, यहाँ से ये आउटलेट पाइप में से फिर एक्चुएटर में जहाँ भी जाना जाएगा। वैसे ही यहाँ आते से फिर से यहाँ पे पूरा मेशिंग हो गया है ना, क्लियरेंस एकदम कम हो गया, फिर गैप बढ़ने लगा, दूसरा वाला सक्शन स्ट्रोक यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आउटलेट इनलेट का और एक कनेक्शन यहाँ पे भी दे दिया, फिर बढ़ते गया यहाँ तक मैक्सिमम हुआ, फिर घटते गया तो यहाँ पे डिस्चार्ज होने लगा। तो ये वाले पोर्ट को भी हमने ये आउटलेट को जोड़ दिया। इस तरह एक ही रोटेशन में यहाँ पे दो सक्शन स्ट्रोक हो रहे हैं और दो डिस्चार्ज स्ट्रोक हो रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में भी सक्शन और डिलीवरी वाला पोर्शन है और राइट साइड में भी सक्शन और डिलीवरी वाला पोर्शन है। इसलिए कुल मिला के इस पूरे असेंबली पे जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो पहले वाली डिज़ाइन की कंपैरिजन में यहाँ फोर्सेस का हमने बैलेंसिंग किया है, तो साइड लोड जो है वो कम कर दिया है। तो इसलिए इस वाले डिज़ाइन को बोलते हैं बैलेंस्ड वेन पंप, राइट।
तो वेन पंप में सिर्फ अगर वेन पंप हम बोलेंगे तो उसका मतलब जनरली अनबैलेंस्ड वेन पंप होता है, और जिसमें कैमरिंग सर्कुलर शेप की होती है। बैलेंस्ड वेन पंप में कैमरिंग इलिप्टिकल शेप की होती है, और इसकी वजह से इस पूरे असेंबली पे जो फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। उसका डिजाइन के एस्पेक्ट से हमें एडवांटेजेस मिलते हैं। इसमें और एक चीज पॉसिबल है जो गियर पंप में नहीं थी, तो और एक डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई देगा। इसके पहले देखते हैं कि उस वेन पंप के एडवांटेजेस क्या है। रिड्यूस लीकेज एंड हेंस मोर एफिशिएंसी बात की है हमने। बैलेंस्ड पंप रिड्यूसेस द साइड लोड, जो दूसरा वाला डिजाइन है, तो वो उसमें भी एडवांटेज मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? बियरिंग फेल्यूर में ऑकर इन अनबैलेंस पंप, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कैपेसिटी एंड प्रेशर रेटिंग्स आर जनरली लोअर देन गियर पंप, ये एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम रेट, और प्रेशर रेटिंग गियर पंप के हिसाब से थोड़ा कम है। Pumps are usually available with certain fixed capacities, and when the load requirement is less than the pump capacity, lots of energy is wasted and gets converted into heat, rising the system temperature. इसके पहले वाले लेक्चर में बात करते हुए भी हमने ये पॉइंट चर्चा में लाया था कि जैसे एक्चुएटर का स्पीड हमें घटाना है, तो पंप जो भी डिस्चार्ज देगा उसको हम वैसे ही अंदर भेजेंगे, तो जो पर्टिकुलर स्पीड मिलेगा उससे अगर कम स्पीड रखना है तो इसका मतलब हमें जो एक्चुएटर के अंदर डिस्चार्ज जा रहा है उसको कम करना पड़ेगा। तो हम जो बाद में पढ़ने वाले डिटेल में फ्लो कंट्रोल वॉल्व उसको लगाएंगे। तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगा के हम जितना फ्लो चाहते हैं उतना ही अंदर भेज सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो बचा हुआ फ्लो है, उसको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो वहीं पे कॉम्प्रेस होते हुए रहेगा और प्रेशर बढ़ा देगा, कुछ तो तोड़ देगा। तो उसको सेफली वेंट करना आवश्यक है। तो उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, किसी को याद आ रहा है? ये जो एक्स्ट्रा फ्लो है वो कोई दिक्कत ना पैदा करे, इसलिए हमने क्या उसमें उपाय योजना की है। सिस्टम में क्या करते हैं इसमें? नहीं समझा? हाइड्रोलिक में ना सर? सर रिलीफ वॉल्व वापरतो आपण. करेक्ट, रिलीफ वॉल्व वापरतो आपण. त्यामुळे काय होईल, जे एक्स्ट्रा लिक्विड आहे ते त्या रिलीफ वॉल्व थ्रू टँकला जाईल. पण त्यामुळे प्रॉब्लेम काय होतो अजून एक लक्षात घ्या. टँकला जाईल, सिस्टीम सेफ आहे, नो डाऊट, एक प्रश्न सॉल्व्ह केला, पण दुसरा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे लक्षात घ्या, सिस्टीमला जे प्रेशर पाहिजे ना त्याहीपेक्षा जास्त प्रेशर सेट केलं असतं रिलीफ वॉल्वला. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही डिस्चार्ज ऍडजस्ट करता तर एक्स्ट्रा जे लिक्विड होतं ते टँकला पाठवण्यासाठी गरज नसतानाही रिलीफ वॉल्व ओपन व्हावा म्हणून त्याचं जे सेट प्रेशर आहे, जे मॅक्सिमम असतं तेवढं प्रेशर पंपाला जनरेट करावं लागतं, आणि त्या पंप प्रेशर सेटिंगवर त्याला काम करावं लागतं. असं जर कंटिन्यूस होणार असेल की पंपाने 50 LPM दिलेला आहे आणि तुम्ही आतमध्ये 40 LPM पाठवता, याचा अर्थ प्रत्येक मिनिटाला तुम्हाला 10 लिटर हे टँकला पाठवायचं आहे थ्रू रिलीफ वॉल्व. मग अशी जर सिच्युएशन असेल तर पंपाला सिस्टीमचं प्रेशर 50 बार आहे आणि तुम्ही रिलीफ वॉल्व सेट केलं 70 बारला, म्हणजे रिक्वायरमेंट 50 बारची असताना सुद्धा एक्स्ट्रा प्रेशर टँकला पाठवण्यासाठी रिलीफ वॉल्व उघडावं लागेल आणि त्याच्यासाठी 70 बार प्रेशर क्रिएट करावं लागेल. त्यामुळे जो जितका वेळ ते प्रेशर एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपल्याला टँकला पाठवायची तितक्या वेळ त्या पंपाला हाय प्रेशरला काम करावं लागेल. याचा परिणाम म्हणून त्या ऑइलचं हिटिंग होतं आणि ते हॉट ऑइल सगळीकडे जातं, तो ते पार्टी हिट होतात, पण आपल्याला माहित आहे त्यामुळे सिस्टीमचं म्हणजे ऑइलचं टेम्परेचर वाढत जात आहे. तर हे अननेसेसरी हिटिंग जे होत आहे त्याच्यामुळे ऑइलचा लाईफही कमी होणार आहे, कारण विस्कोसिटीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो कालांतराने. तर हे आणि एनर्जी हीटच्या स्वरूपात जाते की जी वायात जाते अदरवाईज, त्यामुळे त्याचा एफिशियन्सीवर सुद्धा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे
याच्यावर काय उपाय करायचा, तर दोन पद्धतीचे, एक सर्किटमध्ये काढता येतो, तेव्हा सर्किट जेव्हा पाहू तेव्हा आपण बघू. पण अदरवाईज जर पंपाचाच डिस्चार्ज आपल्याला ऍडजस्ट करता येणार असेल तर फारच चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे ज्या केसमध्ये पंप 50 लिटर देतोय, गिअर पंपात ही सोय नाही बघा. गिअर पंप एकदा का आपण डिझाईन केला त्याची जी काही कॅपॅसिटी आहे ती बदलवता येत नाही. पण या रचनेत जर आपल्याला असं करता आलं कि त्याची कैपेसिटी जेव्हा कमी डिस्चार्ज पाहिजे, जब भी हमें कम डिस्चार्ज चाहिए तो इसमें अगर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जिसकी वजह से डिस्चार्ज कम हो जाएगा, तो फिर सिस्टम में एक्स्ट्रा फ्लूइड जाएगा ही नहीं, तो रिलीफ वॉल्व ओपन करने की नौबत ही नहीं आएगी. तो ये जो एक्स्ट्रा हीटिंग हो रहा था, और अदरवाइज ऑल्सो जो सिस्टम प्रेशर की कंपैरिजन में हाई प्रेशर पे अननेसेसरीली पंप काम कर रहा था, जिसकी वजह से एफिशिएंसी पावर कंजम्पशन पे असर हो रहा था, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो ये वाली रचना इस वेन पंप में पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है, तो ये देखा हूँ फिगर में दिखाया. ये आउटर रिंग था हमारा, ये कैम रिंग था जिसके अंदर ये रोटर है. ये पूरे असेंबली को हमने और एक रिंग में आउटर केसिंग में रख दिया है, और ये आउटर केसिंग में हमने एक ऐसी अरेंजमेंट की है कि इस वाले स्क्रू को हम टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं. टाइट करेंगे तो ये इसको अंदर भेजेगा, अंदर भेजेगा तो यहाँ पे ये जो गैप है ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि इस रिंग को हम लेफ्ट साइड में ढकेल रहे हैं. तो टोटल इसका असर इस पे होगा कि यहाँ का जो वॉल्यूम है गैप का वो बढ़ गया है. तो ऐसे सिचुएशन में ये पंप ज़्यादा डिस्चार्ज देगा. इसको अगर हम लूज करते या इस वाले रिंग को थोड़ा सा राइट साइड में ढकेलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैप है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से डिस्चार्ज रेटिंग कम हो जाएगा. यहाँ पूरा क्लियरेंस नहीं रहेगा, कम क्लियरेंस, यहाँ का क्लियरेंस बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा. जो डिलीवरी साइड पे जो वॉल्यूम मिल रहा है हमें वो कम जाएगा, क्योंकि उस वाले एरिया में जो ये लेंथ थी उसको हमने घटा दिया है. तो इस तरह से इस स्क्रू द्वारा हम इस वाले रिंग रिंग को एडजस्ट कर सकते हैं. उन दोनों के बीच का जो एसेंट्रिसिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली डिस्चार्ज को एक पर्टिकुलर रेंज में कम ज़्यादा कर सकते हैं. ऑफकोर्स उसकी एक रेंज रहेगी, उसके अंदर हम डिस्चार्ज को वेरी कर सकते हैं. तो इस तरह से हम ऐसे सिचुएशन में जो एफिशिएंसी लॉस होता है और कंजम्पशन बढ़ता है या अननेसेसरी हीट पैदा होता है, इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर कर सकते हैं. तो हमने सिंबल जब देखे थे तब उसके अक्रॉस एक एरो दिखाया था, तो वो वाला सिंबल इसको एप्लीकेबल है. इस वाले पंप में, वेन पंप में, हम ऐसी रचना करके इसका डिस्चार्ज एक रेंज के अंदर वेरी कर सकते हैं. तो यू कैन हैव वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप. चलो अब दूसरा पंप देखेंगे, पिस्टन पंप. बिफोर दैट एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहता है, थोड़ा सा काही प्रश्न? सर यूज कुठं होतं म्हणजे नक्की आतमध्ये? वेन पंप अर्थातच सगळे हा. रोटरी पंप हे हायड्रॉलिक सिस्टीम मध्येच वापरणार आहे. सगळे म्हणजे जिथे गिअर पंप वापरतो तिथेच वेन पंप वापरू शकतो, तिथेच पिस्टन पंप. पण आपण जेव्हा परत चर्चा करू सिलेक्शनसाठी, तर तेव्हा सगळे फॅक्टर्स एकत्र डिसाईड करू आणि त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनमध्ये कुठला जास्त फायदेशीर राहील त्याचा विचार करू. गिअर पंपचे आपण ॲडव्हान्टेजेस बघितले, त्यामुळे फक्त तिथे काय व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी होत होती. त्यामुळे आपल्याला व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी चांगली पाहिजे असेल, अर्थात पाहिजे असतेच, पण कॉन्टॅमिनेशनचा काही इश्यू नसेल, विल गो फॉर व्हेन पंप. आणि व्हेन पंपच्या रेटिंगमध्ये, प्रेशर रेटिंगमध्ये जर ते बसत असेल तर अनेक ठिकाणी जिथे गिअर पंप वापरतो तिथे जर प्रेशरचे आणि त्या कॉन्टॅमिनेशन, ऑइलचं कॉन्टॅमिनेशन किती प्रमाणात आहे या जर दोन गोष्टी व्हेन पंपच्या रेंजमध्ये आल्या तिथे व्हेन पंप सुद्धा वापरू शकतो. बरोबर. Now let us proceed further to third category, that is piston pump.
ये पिस्टन पंप जो है वो बहुत सारा सिमिलर है रेसिप्रोकेटिंग पंप से, सिमिलरिटी रखता है, बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन दिस इज नॉट द रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये ख्याल में रखो। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो पिस्टन सिलेंडर या जो भी असेंबली थी वहां पे सिर्फ एक लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी, यहाँ पे भी लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहेगी ही। उसके साथ साथ ये जो पूरी असेंबली है जिसमें ये पिस्टन सिलेंडर बिठाए गए हैं वो पूरी रोटेट भी होगी। So there are both the motions, rotating motion and reciprocating motion, and that's why it is basically kept as a positive displacement pump, categorized as a positive displacement pump, but it is differentiated from reciprocating pump also. So category तो same है, positive displacement pump, but this is not similar to, exactly similar to conventional reciprocating pump जो हमने FMM में पढ़े थे। तो इसमें भी सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक होगा जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता था, और इसके इस तरह से टाइप्स भी है। पिस्टन पंप में जो भी असेंबली हम मल्टीपल सिलेंडर पिस्टन यूज करने वाले हैं इसमें, तो ये जो पूरी असेंबली रहेगी उसका जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस को अगर हर पिस्टन सिलेंडर असेंबली का एक्सिस पैरेलल है तो उस डिजाइन को बोलेंगे एक्सियल, because all the piston cylinders are placed in axial direction। अगर वो एक्सियल डायरेक्शन में नहीं है बल्कि रेडियल डायरेक्शन में है, असेंबली का जो भी एक्सिस रहेगा उसके अनुसार रेडियल डायरेक्शन में है, तो उस वाले पिस्टन पंप को एडिशनल नाम जोड़ दिया जाएगा कि रेडियल पिस्टन पंप। तो पिस्टन पंप्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एक्सियल पिस्टन पंप एंड रेडियल पिस्टन पंप। एक्सियल पिस्टन पंप में भी दो डिजाइन है, एक में स्वैश प्लेट यूज किया जाता है और दूसरे में बेंट एक्सिस। देखेंगे हम क्या अंतर है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियल पिस्टन पंप। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम हॉलो पिस्टन यूज करने वाले हैं जो स्टेशनरी सिलेंडर ब्लॉक में रहेगा, और हर एक पिस्टन को एक स्प्रिंग लोडेड इनलेट वॉल्व रहेगा और एक आउटलेट वॉल्व रहेगा। तो ये पूरा असेंबली एक रिंग के अंदर रोटेट होगा जिसमें एसेंट्रिसिटी होगी, जिसकी वजह से सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक होंगे। तो सक्शन के वक्त वो इनलेट वॉल्व खुलेगा, डिलीवरी के वक्त आउटलेट वॉल्व खुलेगा। लेकिन उसमें दो डिजाइन है, मतलब जो सिलेंडर ब्लॉक असेंबली है जिसमें सिलेंडर पिस्टन रखे हुए है, उस आइदर उसको फिक्स रख के हम उसके अंदर जो कैम है उसको रोटेट करेंगे, और उन दोनों के बीच एसेंट्रिसिटी होने के कारण पिस्टन अंदर जाएगा बाहर आएगा और इस तरह से सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक होगी। या जैसे इस वाले डिजाइन में दिख रहा है, ये अंदर कैम है और ये ब्लॉक है जिसमें सिलेंडर पिस्टन है, तो यहाँ पे कैम रोटेट हो रहा है, ये आउटर वाला ब्लॉक नहीं, और इनमें हमने एसेंट्रिसिटी रखी है। तो ये घूमते घूमते यहाँ देखो, यहाँ पूरा इसको अंदर दबाया इसने, बाद में इसको दबाएगा, बाद में इसको दबाएगा, जब ये अंदर जा रहा है तब ये बाहर आ रहा है। इसका मतलब इसमें पहले सेक्शन डिलीवरी स्ट्रोक हो रहा था, जब ये साइड में इसको प्रेस करेगा तो यहाँ पे डिलीवरी स्ट्रोक होना चालू हो जाएगा। तो हर पिस्टन सिलेंडर असेंबली इसमें यूनिट में सक्शन स्ट्रोक और उसके बाद डिलीवरी स्ट्रोक कंटिन्यूसली होते रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। तो पिस्टन तो अंदर बाहर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे, और इस रोटेटिंग कैम की वजह से ये स्ट्रोक होते रहेंगे। तो ये वाला डिजाइन है, इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें बदल ऐसा है कि इसमें कैम रोटेट होता रहता है, तो यहाँ पे उस कैम पोर्शन को फिक्स रखा है, और ये इसके साथ कनेक्टेड जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको हम घुमा रहे हैं। अब तो एक ही बात हो गई, इसको फिक्स रखो, इसको घुमाओ, या इसको फिक्स रखो, इसको घुमाओ, उनके बीच रिलेटिव इस तरह की रोटरी मोशन होनी चाहिए। तो इस रेडियल पिस्टन फॉर्म में भी जब उसकी रचना पे हम गौर करेंगे तो दो टाइप्स दिखाई देंगे। ये देखो, ये वाला पहला वाला टाइप है, इसमें रोटेटिंग कैम वाला डिजाइन है, इसमें कैम रोटेट हो रहा है, और ये जो ब्लैक है हैचिंग से बचाया ब्लॉक है, हैश लाइन से बताया गया, इसके अंदर हमने सिलेंडर पिस्टन असेंबली की व्यवस्था की है।
और ये जो पिस्टन दिख रहा है यहाँ पे दो वॉल्स, एक इनलेट वॉल है, एक आउटलेट वॉल है। इस वाले एरो को देखो तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अभी यहाँ पे फुल मेशिंग है, मतलब इसके पिस्टन को इसने पूरी तरह से अंदर दबाया हुआ है। इसका मतलब इस वाले सिलेंडर में डिलीवरी स्ट्रोक खत्म होते आ रहा है या खत्म हो गया है। जैसे ये रोटेट होगा इधर तो इसको अंदर प्रेस करेगा तो फिर इसका डिलीवरी स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अभी चल रहा है इसमें डिलीवरी, बाद में ये अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैप है, ये बाहर आया हुआ है। मतलब इसको जब यहाँ पे इस राइट साइड में डिलीवरी चल रही है तब यहाँ लेफ्ट में सक्शन चल रहा है। इसलिए ये इनलेट पोर्ट का कनेक्शन इनको दे दिया है हमने अंदर से, क्योंकि ये पिस्टन बाहर आए हुए हैं, इधर बीच में गैप बन गई है। तो उसकी वजह से दिखे ना आपको यहाँ पे जो गैप है, तो ये इसमें अंदर ऑयल जाएगा इस वाले डायरेक्शन से, यहाँ से अंदर ऑयल जाएगा। तो इधर भी ऑयल अंदर जा रहा है, इधर भी अंदर जा रहा है, इस वाले लाइन से अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पिस्टन ये पिस्टन अंदर अंदर जा रहा है, तो यहाँ से ये गैप कम होते जा रहा है। यहाँ पे देखो ये कम होगा तो यहाँ का ऑयल अंदर वाले पर, ये हॉलो पिस्टन है तो यहाँ से ये प्रेस होके ये आउटलेट वाला वॉल्व खुलेगा और यहाँ से अंदर से इसका कनेक्शन इससे है, तो इसमें ये ऑयल जमा होगा और आउटलेट में जाएगा। तो इन सारे सिलेंडर्स का ऑयल इसमें जमा होते रहेगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड में सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, राइट साइड में डिलीवरी होगा। तो जैसे ये कैम घूमते जाएगा तो घूमते वक्त ये राइट साइड में यहाँ पे डिलीवरी होगा। और हाँ, इसके साथ ये सिलेंडर ब्लॉक इसमें हमने देखा ये फिक्स है और रोटेटिंग कैम है। तो इस तरह से जहाँ गैप बढ़ते जा रहा है वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, और सब सक्शन वॉल अंदर से इनलेट को कनेक्टेड है और सब डिलीवरी वॉल अंदर से आउटलेट को कनेक्टेड है। तो जब भी आउटलेट वॉल से लिक्विड आएगा, जहाँ से भी आएगा, तब वो इन आउटलेट पाइप में जाएगा, और जहाँ से भी अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो इस वाले पाइपलाइन से ऑयल उसके अंदर जाएगा। तो ये वाला है रोटेटिंग कैम। और ये दूसरा डिजाइन, इसमें हमने क्या किया, कैम को वैसे ही रखा है। अब तो ये देखो ये रोटेट नहीं हो रहा है, बल्कि ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। ये पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। ये जैसे ही पिस्टन, यहाँ पे इसका एक्सप्लोडेड व्यू है, तो ये पिस्टन सिलेंडर है, अंदर जो स्प्रिंग वाला होलो, तो ऑयल इसके अंदर जा रहा है। और जब ये अंदर प्रेस होगा, मतलब ये दोनों के बीच जो जगह है वो कम होती जाएगी, तो कम होगी तो इसको बाहर फिर ढकेला जाएगा। तो ये जब सिलेंडर बाहर निकलता है, यहाँ पे जगह बनती है, तो ऑयल अंदर जाता है, मतलब सक्शन स्ट्रोक होता है। जब यहाँ की गैप कम होती जाती है तो ये पिस्टन अंदर आएगा, गैप कम होगी तो ऑयल प्रेशराइज करके बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस वाले डिजाइन में देखो ये ब्लॉक घूम रहा है पूरा, और ये अंदर वाला स्टेशनरी है। तो ये घूमते घूमते इस साइड में जब आएगा यहाँ से, तब ऑयल बाहर निकलना चालू होगा। इसलिए इस सारे यहाँ से यहाँ तक किडनी जैसा शेप है इसका, यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्शन हमने आउटलेट को दे दिया है। तो डिलीवरी स्ट्रोक ये पूरा चल रहा है, ऑयल बाहर आ रहा है, वो लाइन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इनलेट को हमने ये सब कनेक्टेड करके रखा है, क्योंकि इस वाले यहाँ पे पूरा पिस्टन सिलेंडर में गैप खत्म हो गई, क्लियरेंस कम हो गया, यहाँ से गैप बढ़ रही है तो सक्शन स्ट्रोक हो जाए, इसलिए हमने कनेक्शन दे के रखा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की है। इसमें जो कुछ मॉडल्स है उसको हम 1000 बार तक एंड फ्लो रेट 1000 लीटर पर मिनट तक ले जा सकते हैं। कुछ स्पेशल जो इसमें मॉडल बनते हैं तो इतनी हाई प्रेशर तक ये जा सकता है। तो यही पिस्टन पंप की विशेषता है बेसिकली। दोनों टाइप के, रेडियल और एक्सेल में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू गियर एंड वेन पंप, पिस्टन पंप will give very high
प्रेशर। तो इसलिए नेचुरली जहाँ भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए वहाँ पे हम पिस्टन पंप को यूज़ करेंगे। नाउ हियर इज द एनिमेशन फॉर वन ऑफ द डिजाइंस दैट वी हैव सीन अर्लियर। क्या आप बता सकते हैं इसका वर्किंग देखकर कि ये कौन सा वाला डिजाइन है रेडियल पंप का? रेडियल फर्स्ट पिस्टन टाइप पंप सेकंड हाँ वाला रेडियल है सर। फर्स्ट टाइप है सर। ओके, फर्स्ट या सेकंड के बजाय उसका जो नाम है उसका इस्तेमाल करो। फर्स्ट वाला है मतलब क्या नाम है उसका? कौन रोटेट हो रहा है? एक्सेल। रोटेटिंग कैम। ये रोटेटिंग कैम वाला डिजाइन है। यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट पे ये कैम लगाया हुआ है, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है। तो वो रोटेट हो रहा है इसलिए इस वाले सिलेंडर में ये तो स्टेशनरी है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये घूमते घूमते का इसको दबाता है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है। तो जिसको भी वो अंदर दबाएगा वहां पे डिलीवरी स्ट्रोक होगा, तो वो डिस्चार्ज पोर्ट खुल जाएगा। जब दूर होते जाएगा वो सक्शन स्ट्रोक होगा, तो सक्शन पोर्ट खुल जाएगा। तो इस तरह से फिर से एक बार देख लो इस एनिमेशन को। तो दिस इज द रोटेटिंग कैम टाइप डिजाइन। ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये स्टेशनरी, ये नहीं घूम रहा है, इसलिए पहला वाला डिजाइन है। इस तरह से एक्चुअल में देखा जा सकता है रेडियल पिस्टन पंप को, है ना। इसका भी एनिमेशन है, लेकिन यहाँ पे ये अभी वर्क नहीं होगा शायद। ओके, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये भी नहीं शायद रन होगा इसमें। ओके ठीक है। तो इसके अलग अलग इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया गया है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ एक अलग एंगल से आईडीसी ओडीसी ये टर्म यूज कर सकते हैं। तो सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक होगा। यहाँ पे ब्लू और रेड कलर भी दिखा है, इसका मतलब यहाँ पे सक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिलीवरी स्ट्रोक हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखानी चाहिए, उसी के साथ हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रोक होगा। और एक आपके लिए एनिमेशन रेड कलर प्रेशराइज फ्लूइड का है। तो इट लुक्स लाइक अ डांसिंग टॉर्टाइज। एक कछुआ डांस कर रहा है ऐसे लग रहा है जैसे। और एक डिजाइन देखो, ऐसा भी किया जा सकता है। दिस इज द इंटरनल रेडियल पिस्टन पंप। तो इसका जो कंटूर प्रोफाइल है इसको हमने चेंज किया है। तो क्या हो रहा है इसमें, हर एक कितने सेक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे इस डिजाइन की वजह से। 1 2 3 4 5 6 बार जैसे बैलेंस्ड वेन पंप में देखा था कि 2 सेक्शन 2 डिलीवरी हो रहे हैं, यहाँ पे 6 सेक्शन और 6 डिलीवरी हो रहे हैं। इसमें क्या है, अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड वाले मतलब डिस्चार्ज पोर्ट है। तो देखो वहां पे वो बिल्कुल सामने आता है, तब डिलीवरी स्ट्रोक चालू होता है उसका, इसलिए इसका कनेक्शन डिलीवरी लाइन से अंदर से किया हुआ रहता है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, आप देख सकते हैं डिजाइन के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस तरह से भी रेडियल पिस्टन पंप डिजाइन किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके बारे में, जब भी हम कंपेयर करेंगे तब भी हमें इसकी जरूरत होगी। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली जो हमें मिलता है 250 सेंटीमीटर का पर आर। एक्चुअली आर मतलब टाइम चाहिए। प्रेशर कैपेबिलिटीज 350 बार यहाँ तक देखा। लास्ट में हमने देखा कि इसका मॉडल, स्पेशल मॉडल जो डिजाइन किया है वो 1000 बार तक दे सकता है ना, स्पेशलाइज्ड मॉडल। जनरल कैपेबिलिटी 350 बार की भी है। लेकिन अगर आप सर्वे करोगे, नेट पे सारा डेटा अवेलेबल है, तो इससे हायर रेंज में भी आपको कुछ खास डिजाइन मिलेंगे, लेकिन जनरल रेंज ऐसी बताई जा सकती है। सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लोज लूप, ओके। हाई ओवरऑल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी अच्छी है।
और गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शॉर्ट एंड वाइड शेप, सिंपल मल्टीपल पंप असेंबलीज है, कॉस्ट लेकिन ज़्यादा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर उस वाले रेंज में ये यही सूटेबल है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से वो एक्चुअल में देखे जा सकते हैं। तो इसमें दूसरा डिजाइन है वो एक्सियल पिस्टन पंप। तो अगेन थिंग्स आर सिमिलर, ओनली कंस्ट्रक्शन हैज बीन चेंज्ड हियर। वहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में थे ना, अब यहाँ देखो इसका शाफ्ट इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके अंदर सिलेंडर पिस्टन असेंबली रखी एक्सियल पिस्टन है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। तो यहाँ देखो ये पर्टिकुलर इंक्लाइंड एक डिस्क लगाई गई है जिसको बोलते हैं स्लैश प्लेट। तो एक्सियल पिस्टन पंप में दो डिजाइन है, उसमें से ये पहला वाला डिजाइन। ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को ऐसे इंक्लाइंड एक डिस्क लगाई गई है जिसको बोलते हैं स्लैश प्लेट, यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इंक्लिनेशन की वजह से ये वाला पार्ट है ये अंदर गया हुआ पिस्टन, और यहाँ का पिस्टन बाहर खींचा हुआ है, और ये घूमने वाला है पूरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी। तो ये घूमते घूमते इसमें जब रिलेटिवली ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो जाएगा, इसके बीच वाला जो अंतर है वो फर्स्ट हाफ में कम होगा तो दूसरे हाफ में बढ़ते जाएगा। जब कम होगा इसके अंदर वाला, इसके दोनों में के बीच वाला डिस्टेंस कम होगा, तब कौन सा स्ट्रोक होगा तो बताइए। हाँ बताइए। डिलीवरी। हाँ डिलीवरी। ये देखो यहाँ पे अंदर गया है ना, तो ये पिस्टन अंदर दबाया जाएगा तो यहाँ से ऑयल बाहर प्रेस किया जाएगा। तो इसलिए इस वाले पोर्शन में आउटलेट का कनेक्शन देख के रखा है। ये जो पार्ट है ये नहीं घूम रहा है, ये स्टेशनरी है। इसके साथ जो कनेक्टेड है ये और ये घूम रहा है। ये घूमते घूमते वक्त इसके साथ कनेक्शन बना रहे, ऐसी खास व्यवस्था इसके अंदर की गई रहती है। सो दिस इज फिक्स ब्लॉक, दिस इज रोटेटिंग ब्लॉक जिसके अंदर सिलेंडर है, इसलिए इसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। और ये इनपुट वाला शाफ्ट है जो मोटर से घुमाया जाएगा, और इसमें ये खास फ्लैश प्लेट लगाया जिसकी वजह से सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक होता है। यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया गया है, हम और एक बार देखेंगे इसकी बड़ी फिगर यहाँ पे। लेकिन देखो ये डिस्क इंक्लाइन लगाने के बजाय ये पूरी असेंबली ही इंक्लाइन की गई है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंट एक्सिस। इसका एक्सिस देखो बेंट है इसके कंपैरिजन में, तो जैसा हमने प्रोपेलर में देखा था गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में जो लगाते हैं उसमें डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस होता है वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली तो होता ही है, वर्टिकल भी डिस्टेंस होता है दोनों में। तो वो प्रोपेलर शाफ्ट जैसा लगाया दोनों को, वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट यूज करके उनको कनेक्शन दिया रहता है। और ये पूरी असेंबली यहाँ से बेंड की गई, तो ये मोटर इसको घुमाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं बेंट एक्सिस पंप। यहाँ पे ये पूरी चीजें बेंड की है, यहाँ पे एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैश प्लेट लगाई है जो तिरछी है। तो ऐसे दो डिजाइन इसमें है। ये देखिए इसको हमने अभी एनलार्ज किया, तो इस तरह से मैकेनिज्म में पड़ा होगा। तो यहाँ पे खास तरह के जॉइंट्स हम यूज करेंगे, शू प्लेट्स यूज करेंगे, ये बॉल जैसा ये पे यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये घूमेगा भी और इसको अंदर पीछे धकेलेगा भी। तो ये वो स्वैश प्लेट है, इसका वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है उसे स्वैश एंगल बोलते हैं। तो इस फिगर को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि इस एंगल को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी पे या पैरामीटर पे पड़ेगा इस एंगल को? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा सर। क्यों ऐसा क्यों? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है? पंप जितना अंदर खींचता है उसके कंपैरिजन में कितना सिस्टम में जाता है। इसका मतलब बीच में थोड़ा सा लीकेज अगर होगा तो वो वाला ऑयल सिस्टम में नहीं जाएगा ना सर। फिर कैपेसिटी बढ़ा सकते कि या फिर कम कर सकते सर, पंप का कैपेसिटी जो है। हाँ कैसे कैसे, लेकिन बात तो सर सही अगर एंगल जो है अगर कम किया जाए तो कम
ऑयल अंदर खींचेगा और कम आउटलेट में भेजेगा, और एंगल अगर क्यों बढ़ा ऐसा दिया जाए। क्यों ऐसा बराबर है, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है, मतलब ये किसको कम ज्यादा करता है ये एंगल? सर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट जो है सिलेंडर के अंदर। हाँ, ये उसको क्या शब्द टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम? बराबर है, बिल्कुल 100% करेक्ट। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। हाँ हाँ, एरिया तो सिलेंडर का उतना ही रहेगा, स्ट्रोक लेंथ कम होगी। हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप में फॉर्मूला देखा था, अगर सिंगल एक्टिंग है तो क्यू का डिस्चार्ज का फॉर्मूला था LAN/60। तो L स्ट्रोक लेंथ थी, ए एरिया था, N आरपीएम था। तो यहाँ पे भी एरिया सेम है और N भी सेम है, आरपीएम भी सेम है, इसको हम नहीं बदल रहे। तो बदलाव किस में हो रहा है? L में। तो जिसकी वजह से उसका डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब इसमें भी कौन सी खूबी है एक्सेल पिस्टन पंप में भी? अभी आपने बताया, एक बार दोहराओ। सर, वेरिएबल डिस्चार्ज हो सकता है इसमें। एग्जैक्टली तो ये वाला डिजाइन, ये रचना भी आपको वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट या वेरिएबल डिस्चार्ज दे सकती है। तो उस वाले केस में ये फायदेमंद रहेगा इस पंप को यूज करना। और पहले तो हमने देखा ही है कि इसकी प्रेशर कैपेसिटी ज्यादा है। जितना प्रेशर गियर पंप या वेन पंप नहीं बना सकता, वो प्रेशर एक्सेल या रेडियल पिस्टन पंप बना सकते, उतना हाई प्रेशर। तो मतलब उस वाले प्रेशर रेंज में हमें पिस्टन पंप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो इस्तेमाल करते वक्त अगर वेरिएशन चाहिए हमें डिस्चार्ज में, ताकि वो सारे एडवांटेज मिले जो हमने डिस्कस किए प्रीवियसली, ये वो सब इसमें मिल सकते हैं। तो इसका सिंबल भी दिखाते वक्त हम उसके अक्रॉस एरो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसकी अंदर वो खूबियां है डिस्प्लेसमेंट वेरी करने। तो वही वाला पार्ट यहाँ भी देखो, ये फिक्स है, इसमें इनलेट आउटलेट वाला पोर्शन लगाया गया है। ये जो मूविंग सिलेंडर था वो भी यहाँ पे मूविंग है। सिर्फ यहाँ पे अगले वाली जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट थी और उसको इंक्लाइन डिस्क, ऐसा नहीं है, ये इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, इस शाफ्ट और इस डिस्क के बीच। लेकिन ये पूरी असेंबली तिरछी है, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो बात एक ही हुई। तो इस वाले डिजाइन को बोलते हैं बेंट एक्सिस। हाँ, देखो यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोडेड व्यू जैसा दिखाने की, या इसका असेंबली कैसे हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, स्लैश प्लेट वाला डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टाइट करके या यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और इसका वेरिएबल जो नेचर है उसको यूज कर सकते हैं। ये इसका एनिमेशन। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ही है, और ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक घूम रहा है, तो इसकी वजह से नीचे जब जाएगा तो डिस्टेंस घट जाएगा, तो पिस्टन अंदर जाएंगे तो डिलीवरी। यहाँ पे कलर कोडिंग यूज नहीं किया है प्रॉपरली, तो नीचे वाले साइड में रेड कलर चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रेशराइज ऑयल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे पिस्टन बाहर जा रहा है तो सक्शन स्ट्रोक होगा, और ये यहाँ पे स्टेशनरी है, इसकी वजह से यहाँ पे इसे एसेंट्रिसिटी इन द सेंस, ये जो गैप है वो कम ज़्यादा होती जा रही है। तो अगेन व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एडवांटेजेस ये है कि हाई प्रेशर 700 बार नॉर्मली, बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको जो 700 बार तक प्रेशर डेवलप करते हैं। हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि क्लियरेंस बहुत ही टाइट है, तो वही वाली चीज़, तो बहुत ही अच्छी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, वो डिस्चार्ज के बारे में यहाँ पे लिखना चाहिए, इस रेंज में वो डिस्चार्ज देता है। और वेरिएबल नेचर है इसका, ताकि हम नॉर्मल, मतलब अगर डिस्चार्ज में कम ज़्यादा चाहिए हमें तो कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एफिशिएंसी एंड हीटिंग ऑफ द ऑयल। एंड का क्वाइट ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, ये इसके एडवांटेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हो सकते हैं? बिल्कुल वही जो हमें पता है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल में अफेक्ट, क्योंकि इसमें क्लियरेंस बहुत टाइट है,
अगर गलती से कोई घुस गया ना तो वो जाम कर देगा अंदर वाले पार्ट को, इसलिए यहाँ पे जो ऑयल हमें यूज करना है वो अच्छा फिल्टर किया हुआ ऑयल चाहिए। फोम्स और बबल फॉर्मेशन अगर होता है तो दिक्कत पैदा होगी, इसकी वजह से ओवर हीटिंग ऑफ ऑयल अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वो हीट पिस्टन, उसके रिंग्स, उसको ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी वजह से अगर वो एक्सपांड होता है तो इनमें पहले ही क्लियरेंस कम है, तो और अगर एक्सपांड हो गए तो सीजर जिसे हम बोलते हैं वो जाम हो सकता है उसके अंदर। रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा अगर हीट बढ़ गई तो फंस जाएगा, वो घूमना बंद कर देगा, मतलब रेसिप्रोकेट करना एक्सपेंशन की वजह से, तो वो दिक्कत हो सकती है। और ऑयल जो हम अगर रॉन्ग ऑयल सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो सील मटेरियल वगैरह है उसके साथ कोई प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है। तो वो ऑयल शुड बी कंपैटिबल विद द मटेरियल ऑफ द पिस्टन सिलेंडर कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो गियर पंप में ये जनरल प्रेशर रेटिंग है। वेन के हमने डिसएडवांटेजेस में देखा था स्लाइटली, नहीं ये इंटरनल गियर पंप के हैं, तो वेन पंप में देखा था कि गियर पंप से स्लाइटली कम है ना। और एक्सेल में देखो, एक सोर्स में दिया है अप टू 800 बार, यहाँ पे भी 200 टू 800 बार ऐसी इसकी रेंज है। इसका आरपीएम यहाँ पे दिखाया गया है। तो रेडियल पिस्टन पंप 1000 आरपीएम तक हम यूज कर सकते हैं। एक्सेल जो है उसको थोड़ा 1200 से 1800 कम में यूज किया है। वेन को भी कम आरपीएम पे चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे ये ज़्यादा है। तो आरपीएम ज़्यादा है, इसका मतलब हम उसका कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी अच्छी रख सकते हैं। और ये ओवरऑल इफिशिएंसी है, तो 80 टू 90% ओवरऑल इफिशिएंसी, 70 टू 85% इंटरनल गियर की। वेन पंप की हमने देखा था कि गियर पंप से स्लाइटली ज़्यादा है, तो 80 टू 95%। और एक्सेल पिस्टन पंप में देखिए 90 टू 98%, और रेडियल में 85 टू 95%, मतलब ज़्यादा है यहाँ पर कंपैरेटिवली। तो ये सब पंप्स का कंपैरिजन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक की एफिशिएंसी का हम फैक्टर ले सकते हैं, जो एक्सटर्नल गियर की कम हो सकती है, बाकी सब वेन पंप की अच्छी है, उससे ज़्यादा पिस्टन पंप की है। और एक कंपैरिजन का स्लाइड आपको दूसरे बुक में मिल सकता है। थोड़े यहाँ पे आपको बदलाव जरूर दिखेंगे, बुक टू बुक वैल्यूज वेरी होती है, लेकिन वो रेंज में ही है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ कंपेयर किया है, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, देखो ये मैक्सिमम 20 बार दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा देता है डिस्चार्ज। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं देते, लेकिन हाई प्रेशर देते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है 175 बार से लेकर 1000 बार तक आपको अलग अलग टाइप के रोटरी पंप यूज करने के बाद प्रेशर मिल सकता है। गियर में देखा 175, वेन में भी, पिस्टन पंप 300 तक बताया है। अलग अलग डिज़ाइन है, 300, 700, 1000। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम फ्लो गियर में अच्छा है, उससे ज़्यादा वेन में है, पिस्टन पंप में भी अच्छा है, और इसकी जो अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे कम दिखाया गया है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो इन दोनों में नहीं है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप तो खैर कंपैरिजन के लिए ये रोटरी पंप नहीं है सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन बाकी सारे रोटरी है जिसमें मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये सब एक ही टाइप के पंप है नीचे वाले। उसमें जो गियर वाला डिजाइन है उसमें वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं है, बाकी सब में है। तो किसी को कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछना है? सर यामध्ये क्वेश्चन कसा आहे, आपण श्वास पेपमध्ये पिस्टन्स आपण जे कन्स्ट्रक्ट करतो, पिस्टन जे आपण यूज करतो त्याचं लिमिटेशन वगैरे काय असू शकतं, असं काय सांगा पिस्टन्स असावे? और मला आवाज काही नीट आला नाही बाबा तुझा, परत एकदा व्यवस्थित जरा रेंज मध्ये. हॅलो, आवाज येतो?
हॅलो, आवाज येतोय? हो येतोय. श्वास प्लेट, या श्वास प्लेटचा आपण जो हा जो पंप आहे आपला, त्याच्यामध्ये पिस्टनच्या नंबर्स ऑफ पिस्टन्सवर लिमिटेशन असतात. हो हो ऑफकोर्स. म्हणजे कसं आहे बघा की ती रोटेटिंग असेंब्ली होणार आहे है ना, आणि फिजिकल त्याचा साईज किती राहायला पाहिजे या गोष्टीचा तो विचार करावाच लागेल. खूप मोठा साईज बनवून तो चालणार, इतकी हेवी सिस्टीम होईल ती की थेरॉटिकली ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात प्रॅक्टिकली जेव्हा रन करू तेव्हा त्याचे लॉसेस आणि इतकं सगळं लोडिंग त्याच्यावर जे येते ते फिजिकली चालणार नाही. त्यामुळे अर्थातच नंबर ऑफ सिलेंडर्स जे आपण पंप टर्बाईनच्या बाबतीत मागे विचार केला होता की त्याच्यावर शाफ्ट, त्याच्यावर किती बकेट्स असाव्या, कारण मोर नंबर ऑफ बकेट केला तर जास्त तुम्हाला स्ट्रोक्स मिळणार आहेत इम्पॅक्टचे. पण शेवटी फिजिकल जे डायमेन्शन त्याचं बनणार आहे ते खूप हेवी होईल आणि त्यामुळे त्याच्यातले ओव्हरऑल एफिशियन्सी आहे ती मार खाणार आहे. त्यामुळे अर्थात त्याचं लिमिटेशन येणारच आहे.